Now we will understand recent trends for business environment. Economic environment in India is changing fast due to change economic policies of government. At time of independence, India economy was basically agrarian with weak industrial base. सरकार की बदलती आर्थिक नीतियों के कारण भारत में आर्थिक माहौल तेजी से बदल रहा है। स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान थी और औद्योगिक आधार कमजोर था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया इकोनॉमिकली बेसिकली agrarian with a weak industrial base. To speed up the industrial growth and solve the various economic problems, the control were adopted measure on the functioning of private enterprises. औद्योगिक विकास को गति देने और विभिन्न आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए निजी उद्यमों के कामकाज पर नियंत्रण के उपाय अपनाए गए। All these resulted in a mixed response. There was a growth in net national product and per capita income and development of capital goods sector and infrastructure. But the rate of industrial growth was slow. Inflation increased and government faced serious foreign exchange crisis during the tightening. इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। कुछ राष्ट्रीय उत्पाद प्रति व्यक्ति आय और पूंजीगत वस्तुओं में क्षेत्र और बुनियादी ढांचे के विकास में वृद्धि हुई, लेकिन 80 के दशक में औद्योगिक विकास की दर धीमी रही, मुद्रास्फीति बढ़ी और सरकार को गंभीर विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा। As a result, Government of India introduced radical changes in economic policies. 1991, these policy abolished industrial licensing in most cases, allowed private participation in many industries. This investigation was carried out in many public sector enterprises, open up the economy कंसिडरेबली। परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने 1991 में आर्थिक नीतियों में आमूल चूल परिवर्तन किए और इस नीति से अधिकांश मामलों में औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया और कई उद्योगों में निजी भागीदारी की अनुमति दी गई। कई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश किया गया, अर्थव्यवस्था को काफी हद तक खोल दिया गया। These trends are discussed under three heads. इन प्रवृत्तियों को तीन शीर्षकों के अंतर्गत चर्चा की गई। लिबरलाइजेशन refers to removing the unnecessary control restriction for the smooth functioning of the business enterprises. It include उदारीकरण का तात्पर्य व्यावसायिक उद्यम से सुचारू रूप से संचालन के लिए अनावश्यक नियंत्रणों पर प्रतिबंधों को हटाना और इसमें शामिल है अबोलिशिंग industrial licensing requirement in a most of industries, freedom in declining scale of business activities and freedom in fixing price of goods of services, simplifying the procedure for import export, reduction in tax rates, simplified policies to attract foreign capital, technology in India. अधिकांश उद्योगों में औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करना, व्यावसायिक गतिविधियों के पैमाने को तय करने में स्वतंत्रता, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें तय करने में स्वतंत्रता, आयात और निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाना, कम दरों में कमी और भारत में विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने की सरल नीतियाँ। Through the liberalization process, Indian economy has opened up, started interacting with the world in a big way. This has resulted in easy entry of foreign business organization in India, which has further resulted in stiff competition efficiency. Ultimately, liberalization has helped us achieving a high growth rate and easy availability of goods at competitive rate. A healthy, flourishing stock market, high foreign exchange result, good industry relation. उदारीकरण की इस प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था खुल गई और दुनिया के साथ बड़े पैमाने पर बातचीत शुरू कर दी गई। इसके परिणाम स्वरूप भारत में विदेशी व्यापार संगठनों को प्रवेश आसान हो गया, जिसके परिणामस्वरूप कड़ी प्रतिस्पर्धा और दक्षता आई। अंततः उदारीकरण में उच्च विकास दर, प्रतिस्पर्धी दरों पर वस्तुओं को आसान उपलब्धता और एक स्वस्थ समृद्ध शेयर बाजार, उच्च विदेशी मुद्रा भंडार, अच्छे औद्योगिक संबंध आदि हासिल करने में मदद मिली।
Privatization refers to reducing role of public sector by increasing role of private sector in most activities. As a result of policy reforms announced in 1991, expansion of public sector has literally come to halt. Private sector registered fast growth in post liberalization period. वैश्वीकरण निजीकरण निजीकरण का अर्थ है अधिकांश गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाकर सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कम करना। 1991 में घोषित नीति सुधारों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार वस्तुतः रुक गया और उदारीकरण के बाद अवधि में निजी क्षेत्र में तेजी से विकास किया गया। See, globalization refers to integrating economy of country with the world economy. This implies free flow of goods and services and capital technology. Labor across national boundaries. वैश्वीकरण का तात्पर्य किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। इसका तात्पर्य राष्ट्रीय सीमाओं पर के पार वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी और श्रम के मुक्त प्रवाह से है। वैश्वीकरण के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने सीमा शुल्क में कमी की, निर्यात और आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध या कोटा हटाने, विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने और विदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के विभिन्न उपाय अपनाए। Means to achieve this objective of globalization, government has adopted various measures such as the reduction in custom duties and removal of the quantity restrictions and quotas and on export and import, facilitating the foreign investment, increasing the foreign technology. These measures are expected to achieve higher rate of growth and enlargement of employment potential, reduction in regional disparities। मतलब इन उपायों से विकास की उच्च दर और रोजगार क्षमता में दर में वृद्धि और क्षेत्रीय असमानताओं में कमी आने लगी। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हैं। व्हाट इज़ द मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? राइट द एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइस गुड्स एंड सर्विस, डी इन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर्स, पब्लिक सेक्टर enterprise, reduction in sales tax। समराइज करते हैं इसको। समरी जो है, द एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ all forces, external forces which have bearing on functioning of the business. The factor affecting environment are economic, non-economic, which have been discussed in detail. The discussion reveals that economic environment is not a static one, but it is a changing phenomena, and the factor affecting economic environment always keep on changing. Innovation, population, advancement of science, technology, and all go under the change consequently, and and economic environment also changes। पर्यावरण में सभी बाह्य शक्तियाँ शामिल होती है जो व्यवसाय के कामकाज पर असर डालती है। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक आर्थिक और गैर आर्थिक है, जिन पर विस्तार से चर्चा की गई है। चर्चा से पता चलता है कि आर्थिक वातावरण स्थिर बल्कि एक बदलती घटना है। आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने के लिए कारक हमेशा जनसंख्या वृद्धि, विज्ञान की उन्नति और प्रौद्योगिकी के सभी परिवर्तन कीवर्ड्स सिस्टम अप्रोच, एवरीथिंग इंटरलिंक्ड और इनरिलेटेड ईच अदर। मतलब प्रणाली, दृष्टिकोण, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई, परस्पर संबंधित है। बिजनेस एनवायरनमेंट, टोटल सराउंडिंग विच हैव डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेयरिंग्स ऑन फंक्शनिंग बिजनेस। संपूर्ण परिवेश जिसका व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय कामकाज। लिबरलाइजेशन, रिमूविंग द अननेसेसरी कंट्रोल restrictions for month and functioning of the business environment। उदारीकरण सुचारू कामकाज के लिए अनावश्यक नियंत्रण प्रतिबंधों को हटाना और व्यावसायिक उद्यमों की कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेटिंग
इकोनॉमी ऑफ कंट्री विद इकोनॉमी जो है वैश्वीकरण किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकत्रित करना। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कल इसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।